میں ہوں ہنا عادل۔ اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجیے اور بر وقت معلومات کے لیے بیل آئیکن پریس کیجیے۔ عوام سے گزارش ہے کہ خود کو محدود رکھ کر اس وبا سے محفوظ رہیں، کیونکہ زندگی بہت قیمتی ہے۔ اگلے 15 دن نہایت اہم ہے۔ کوشش کریں انفرادی اور اجتماعی طور پر بھرپور احتیاط برتی جا سکے۔ کورونا کی صورتحال پر پاک فوج کا بڑا اقدام، پاکستان آرمی کا انٹرنل سیکیورٹی الاؤنس نہ لینے کا فیصلہ۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار کی میڈیا بریفنگ، کہا آنے والے دنوں میں کورونا مریضوں کی تعداد بڑھ سکتی ہے۔ پاک فوج کے تمام وسائل وبا سے نمٹنے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں۔ لاکھوں مستحق افراد کو راشن پہنچانے کا سلسلہ جاری ہے۔ پاکستان آرمی کی 5 لیبارٹریز قومی ادارہ صحت کے تعاون سے کام کر رہی ہیں۔ تافتان، طورخم اور چمن میں قرنطینہ اور آئسولیشن سہولتیں قائم کر دی گئی ہیں۔ دنیا کووڈ-19 کے خلاف متحد ہو رہی ہے۔ بدقسمتی سے ہندوستان ہندتوا اور سیفر آن ٹیررزم کو فروغ دے رہا ہے۔ بھارت نے ظلم، بربریت، نسلی امتیاز اور نفرت کی جو آگ مقبوضہ کشمیر میں لگائی، اب وہ پورے ہندوستان میں پھیل چکی ہے۔ پاک فوج کے پرنسپل سٹاف آفیسرز کی کانفرنس، ایل او سی پر بھارتی جارحیت اور کورونا کی صورتحال کا جائزہ۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں بھارت نے عالمی قوانین پامال کر کے ہندتوا اور دہشت گردی کو فروغ دینے کی پالیسی کو ثابت کیا۔ بھارت نے جان بوجھ کر ایل او سی پر آبادیوں کو نشانہ بنایا۔ موجودہ صورتحال میں بھی بھارت آر ایس ایس کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ بھارت کی کشمیر میں لگائی گئی نفرت کی آگ پورے بھارت میں پھیل چکی ہے۔ پاکستان کو کورونا کے معاملے پر دنیا سے کوئی امداد نہیں ملی، صرف آئی ایم ایف نے قرضوں کی قسطوں میں سہولت دی۔ وزیر اعظم عمران خان کی یوٹیوب ولاگر سے ملاقات میں گفتگو، کہا کورونا ملک کا بہت بڑا امتحان ہے، لاک ڈاؤن سے کمزور طبقہ مشکل میں آ گیا، کوئی کتنا بھی جھوٹ بولے آخرکار عوام سچ ڈھونڈ لیں گے۔ کورونا سے کیسے نمٹا جائے، وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی رابطہ کمیٹی کا ایک اور اجلاس، چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ کی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت، اقدامات کا جائزہ اور تجاویز پیش کی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان سے اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کی ملاقات، اسپیکر نے قومی اسمبلی کا اجلاس بلانے سے متعلق امور سے آگاہ کیا۔ وزیر اعظم نے کہا پارلیمانی سطح پر کیے جانے والے فیصلوں پر عمل درآمد کرنا اولین ترجیح ہے۔ کورونا وائرس کی وبا پر قابو پانے کے لیے پارلیمان کا کردار انتہائی اہم ہے۔ ملاقات میں کورونا کی روک تھام کے لیے حکومتی اقدامات پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملک بھر میں پہلا روزہ کل ہوگا، اشیاء خورونوش اور گوشت کی دکانوں پر لوگوں کی خریداری۔ پہلی تراویح آج ادا کی جائے گی۔ حکومتی ایس او پیز پر مکمل طور پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ مساجد کے باہر حکومتی احکامات آویزاں کر دیے گئے۔ نمازی فاصلہ رکھیں گے، وضو گھر سے کر کے آئیں گے۔ 50 سال سے زائد اور کم عمر بچوں کو مساجد آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ مساجد میں قالین اور صفیں اٹھا دی گئیں، اسپرے بھی کیا گیا۔ سعودی عرب، یو اے ای، یورپ، امریکہ، انڈونیشیا، مصر، لبنان سمیت بیشتر ممالک میں آج پہلا روزہ۔ ملک بھر میں جمعۃ المبارک کو بطور یوم توبہ منایا گیا۔ مساجد میں نماز جمعہ کے محدود اجتماعات میں کورونا کی مہلک وبا کے خاتمے اور مغفرت کی دعائیں مانگی گئی۔ سندھ میں دوپہر 12 بجے سے 3 بجے تک سخت ترین لاک ڈاؤن، ہر قسم کے کاروبار پر پابندی رہی۔ پولیس کے جگہ جگہ ناکے، شہریوں سے پوچھ گچھ۔ مساجد میں نماز جمعہ کے محدود اجتماعات ہوئے۔ سندھ حکومت کا نماز تراویح کے اجتماعات بھی محدود کرنے کا فیصلہ۔
सिंध में ताजरों को ऑनलाइन कारोबार की इजाज़त, SOPs भी जारी। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत माह रमज़ान में कारोबार के SOPs बारे इजलास। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, कारोबार पीर ता जुमेरात सुबह 9 से 3 बजे तक होगा। सुबह 8 से शाम 5 बजे तक ग्रॉसरी की दुकानें खुली रहेंगी। एहतराम रमज़ान ऑर्डिनेंस जारी रहेगा। खाने की डिलीवरी 5 से 10 बजे तक होगी। सहरी में कोई होम डिलीवरी सर्विस नहीं होगी। रमज़ान मुबारक में शाम 5 बजे के बाद मुकम्मल लॉकडाउन होगा। पाकिस्तान में जुलाई के वस्त तक कोरोना मुतासिरीन की तादाद 2 लाख से तजावुज़ करने का खदशा। आलमी इदारा सेहत के सरबराह ने खबरदार कर दिया। कहा, पाकिस्तान में मौसर इकदाम ना किए गए तो कोरोना केसेस की तादाद बढ़ सकती है। कोरोना रिस्पॉन्स प्लान पाकिस्तानी हुकूमत, अक़वाम मुत्तहिदा और इसके शराकत इदारों की मुश्तरका हिकमत अमली पर मुनहसर है। वायरस पाकिस्तान के 115 अजला में फैल चुका है। सिंध और पंजाब ज्यादा मुतासरा सूबों में शामिल हैं। पाकिस्तान में कोरोना वायरस तेजी से फैलने लगा। 24 घंटे में मजीद 13 अफराद जाँ बहक। अमवात की तादाद 237 हो गई। एक दिन में 642 नए केसेस रिपोर्ट। मरीजों की कुल तादाद 11,155 हो गई। पंजाब में 4,767, सिंध में 3,671, खैबर पख्तूनख्वा में 1,541 और बलूचिस्तान में 607 मरीज। इस्लामाबाद में मरीजों की तादाद 214, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में 300 और आज़ाद कश्मीर में 55 है। 2,527 मरीज मुकम्मल सेहत याब भी हो चुके। सबको साथ लेकर चलना हुकूमत की जिम्मेदारी है। मसाजिद के फैसलों पर उलमा कराम की राय बहुत ज़रूरी है। उलमा से दरख्वास्त है 20 नुकाती ज़ाब्ते अखलाक पर अमल कराएं। हुकूमती तर्जमान शहबाज गिल की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने खुद कहा वो मस्जिद नहीं जा रहे। मुआविन खुसूसी सानिया नश्तर बोली, 27 अप्रैल से नादरा के तमाम दफातर खोल रहे हैं। मुस्तहकीन को मिलने वाली रकम में शफाफियत यकीनी बनाई जा रही है। चाहते हैं लोग आइंदा 2 हफ्ते घरों में रहें। फलाही मंसूबों में सियासत का कोई अमल दखल नहीं। रमज़ान मुबारक से एक रोज़ कबल मुल्क भर में यूटिलिटी स्टोर्स बंद। शहरियों को अशिया खुरोनोश के हुसूल के लिए मुश्किलात का सामना। यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया और मुलाजमीन के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम। मुलाजमीन यूनियन ने शटर डाउन हड़ताल कर दी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, पेशावर, गुजरांवाला, मुल्तान, कोयटा में यूटिलिटी स्टोर्स बंद कर दिए गए। मुतालबात मंजूर होने तक स्टोर्स बंद रखे जाएंगे, यूनियन का ऐलान। दुनिया भर में मोहलिक वबा कोरोना वायरस के वार पर वार जारी। 1,91,000 से ज्यादा अफराद जान से गए। 27,26,000 से ऊपर अफराद बीमार होकर अस्पतालों में दाखिल। इटली में मजीद 464 अमवात। हलाकतों की तादाद 25,000 से ज्यादा हो गई। इटली में 1,90,000 कोरोना से मुतासिर। फ्रांस में 21,856 अफराद हलाक। इंडोनेशिया ने फजाई और बहरी सफर पर पाबंदी लगा दी। सुपर पावर अमरीका कोरोना वायरस के आगे बेबस। 50,000 से ज्यादा अफराद जान से हाथ धो बैठे। मरीजों की तादाद 8 लाख से ज्यादा हो गई। अमरीकी सदर ट्रंप ने डॉक्टरों को नया टास्क सौंप दिया। कहा, डॉक्टर्स पता लगाएं कोरोना वायरस के मरीजों का धूप और रोशनी से इलाज किया जा सकता है या नहीं। अमरीकी वजीर खारजा माइक पॉम्पियो ने कहा, चीन ने आलमी इदारा सेहत समेत दुनिया को वायरस के बारे ताखीर से आगाह किया। चीन से वुहान में पाए गए वायरस का असल सैंपल भी फराहम करने का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान की बुनियादों को करप्शन कोरोना ने खोखला किया। माजी की हुकूमतों की करप्शन का खुमियाजा अवाम को भुगतना पड़ा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की अपोजिशन पर तनकीद। कहा, अवामी ताउन से कोरोना और करप्शन पर काबू पाएंगे। अवाम की जिंदगियों के मसले पर सियासत चमकाने की कोशिश काबिल मज़म्मत है। मेजर रिटायर्ड आजम सुलेमान सेक्रेटरी दाखिला तैनात। यूसुफ नसीम खोखर नए सेक्रेटरी कॉमर्स तैनात कर दिए गए। रमज़ानुल मुबारक में बैंकों के औकात कार जारी। स्टेट बैंक के मुताबिक बैंक पीर ता जुमेरात
صبح 10 بجے تا دوپہر 1:30 بجے تک خدمات فراہم کریں گے۔ جمعے کو 10 بجے سے 1 بجے تک بینکاری خدمات جاری رہیں گی۔ یکم رمضان المبارک کو زکوٰۃ کٹوتی کے لیے بینک بند رہیں گے۔ कोरोना वायरस से डरना नहीं लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। कोरोना वायरस से डरना नहीं लड़ना है। स्टे होम स्टे सेफ। कोरोना वायरस से डरना नहीं बचना है। स्टे होम स्टे सेफ। और समाजी दूरी कोरोना से महफूज रहने के लिए जरूरी। अपना और घर वालों का ख्याल रखें। लॉकडाउन में अपना वक्त कैसे गुजार रहे हैं, फोन उठाएं, अपनी वीडियोस या तस्वीर बनाएं और 0324295188 पर हमें व्हाट्सएप करें या फेसबुक और ट्विटर पर #StayHome के साथ अपलोड करें। हम दिखाएंगे सबको आपकी मसरूफियात। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि पाक फौज ने कोरोना ड्यूटी पर आइस अलाउंस न लेने का फैसला किया है। ये रकम कोरोना से मुतासर अफराद पर खर्च की जा सकेगी। बोले कि आने वाले दिनों में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ सकती है। तफसील जानते हैं खालिद महमूद से। की सूरत हाल पर पाक फौज का बड़ा इकदाम, पाक आर्मी का इंटरनल सिक्योरिटी अलाउंस न लेने का फैसला। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की मीडिया ब्रीफिंग। कहा पाक फौज के तमाम वसाइल वबा से निमटने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स ने चाइना से 6 सॉर्टीज़ के जरिए 77 टन इमदादी सामान जिसमें मेडिकल इक्विपमेंट और अद्वियात शामिल हैं पाकिस्तान पहुँचाया है। PIA के वो क्रू जिनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आए उनको पाकिस्तान आर्मी के हॉस्पिटल में तरजीही बुनियादों पर इलाज की सहूलत मुहैया की जाएगी ताकि कौमी एयरलाइन बैरून मुल्क फंसे पाकिस्तानियों को वापस लाने का काम एहसन तरीके से सरअंजाम दे सके। DGISPR ने कहा आने वाले दिनों में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़ सकती है। पाकिस्तान आर्मी की 5 लेबोरेटरीज कौमी इदारे सेहत के ताउन से काम कर रही हैं। ट्रैक ट्रेस एंड क्वारंटीन स्ट्रेटजी जिसको TTQ स्ट्रेटजी कहा जा रहा है, यही हमारी कोविड-19 के ख़िलाफ़ एफर्ट को ड्राइव करेगी। इसका बुनियादी मकसद कोरोना वायरस के फैलाव की निशानदही पर सिर्फ हॉट स्पॉट और क्लस्टर्स को फोकस करके टारगेटेड लॉकडाउन करना है। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा लाखों मुस्तहिक अफराद को राशन पहुंचाने का सिलसिला भी जारी है। तफ्तान, तुरखम और चमन में करंतना और आइसोलेशन सहूलतें कायम कर दी गई हैं। दुआ है रमज़ान की बरकत से पाकिस्तान और दुनिया को कोरोना से निजात मिले। GHQ में आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर कॉन्फ्रेंस हुई। LOC पर भारतीय जारहियत और कोरोना की सूरत-ए-हाल का जायजा लिया गया। DGISPR कहते हैं कि कोरोना की वबा के बावजूद भारत ने इस साल 850 बार सीज फायर की खिलाफ वर्जी की। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की मीडिया ब्रीफिंग की तफसील बता रहे हैं खालिद महमूद। चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की ज़ेर सदारत GHQ में प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। LOC पर भारतीय जारहियत और कोरोना की सूरत हाल का जायजा लिया गया। DGISPR कहते हैं भारत ने आलमी कवानीन पामाल करके हिंदुत्व और दहशतगर्दी को फ़रोग देने की पॉलिसी को साबित किया। बदकिस्मती से ऐसे वक्त में RSS के इंतहा पसंदों ने तमाम बैनुल अक़वामी कवानीन और अक़दार को पामाल करते हुए साबित किया है कि हिंदुस्तान हिंदुत्व और सफ़र ऑन टेररिज्म को फ़रोग दे रहा है। भारत ने जुल्म, बर्बरियत, नस्ली इम्तियाज़ और नफ़रत की जो आग मकबूजा कश्मीर में लगाई, अब वो पूरे हिंदुस्तान में फैल चुकी है। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा भारतीय क़यादत के इश्तिआल अंगेज़ बयानात का नोटिस लिया है। इस साल अब तक हिंदुस्तान ने तकरीबन 850 मरतबा सीज़ फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है और जानबूझकर लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ आबाद आज़ाद कश्मीर के पुरअमन शहरियों को निशाना बनाया है। आज़ाद जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के हवाले से भी हिंदुस्तान ने जो फेक न्यूज़ फैलाने की कोशिश की, उसकी हकीकत भी दुनिया के सामने खुल चुकी है। भारतीय मिलिट्री क़यादत के पाकिस्तान के बारे में दिए गए हालिया बयान
भारत की अंदरूनी नाकामियों पर बढ़ती हुई फ्रस्ट्रेशन और डिमोरलाइजेशन को जाहिर करते हैं। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा, कोरोना की सूरत हाल के पेश नज़र अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी ने दुनिया भर में सीज़ फायर की अपील की है। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। पाकिस्तान को कोरोना के मामले पर दुनिया से कोई इमदाद नहीं मिली। वज़ीर आज़म इमरान खान की यूट्यूब व्लॉगर से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू, सिर्फ IMF ने कर्जों की किस्तों में सहूलत दी है, कोई कितना भी झूठ बोले आखिरकार अवाम सच ढूंढ लेंगे। अहम खबर, उन्होंने कहा कि लॉकडाउन से कमज़ोर तबका मुश्किल में आ गया है। लॉकडाउन के फैसले पर मेरी राय मुख्तलिफ थी। पाकिस्तान में जुलाई के वस्त तक कोरोना मुतासरीन की तादाद 2 लाख से ज़ायद हो सकती है। आलमी अदारा सेहत के सरबराह ने खबरदार कर दिया, कहा कोविड-19 रिस्पॉन्स प्लान पाकिस्तानी हुकूमत, अक़वाम मुत्तहिदा और उसके शराकतदारों की मुश्तरका हिकमत अमली पर मुनहसर है। वायरस पाकिस्तान के 115 अजला में फैल चुका है। सिंध और पंजाब ज़्यादा मुतासर हैं। कोविड-19 रिस्पॉन्स प्लान पाकिस्तानी हुकूमत, अक़वाम मुत्तहिदा की मुश्तरका हिकमत अमली पर मुनहसर है। सिंध की डॉक्टर्स का लॉकडाउन मजीद सख्त करने का मुतालबा, और डॉक्टर्स का कहना है कि डॉक्टर्स को भी कोरोना हो गया तो मरीजों का इलाज कौन करेगा। खवातीन डॉक्टर्स ने कहा कि लोगों से अपील है कि घरों में रहें। सिंध की खवातीन डॉक्टर्स की जानिब से ऐसा कहा गया। डॉक्टर्स को भी कोरोना हो गया तो मरीजों का इलाज कौन करेगा। खवातीन डॉक्टर्स ने मजीद कहा कि लोगों से अपील है कि वो घरों में रहें। अहम खबर दे रहे आपको, सिंध की खवातीन डॉक्टर्स की जानिब से कहा गया कि सिंध में भी चीन के तर्ज का लॉकडाउन किया जाए। मैं हूँ हिना आदिल। अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बर वक्त मालूमात के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए।